Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. So in last session we had covered section 6 of the code. In section 6 we had studied that who are the people who can file an application of CIRP to the adjudicating authority. So in our case, who is the adjudicating authority? Adjudicating authority in the case of corporate insolvency resolution process is NCLT. And what is the maximum minimum limit of the debt what is supposed to be there or default is supposed to be there is greater than 1 crore. Okay, if your default is greater than 1 crore, then you can file an application of CIRP with NCLT. Who are the people who can file? So first is the financial creditor, operational creditor, and the corporate debtor himself can file the application. So in today's session, what we will try to cover is we will try to cover what are the procedure for filing of the application by either of these three category of people under CIRP process. So let's start with section 7. Section 7 says a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors or any other person on behalf of financial creditors may, as be notified by the central government, file an application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor before adjudicating an authority when a default has occurred. So now let's break this definition into simple parts so that you can understand and grasp it. Say for example, you are ABC Limited and you have taken loan from multiple financial creditors. Okay, you have taken a loan from SBI, you have taken a loan from HDFC, you have taken a loan from ICICI. SBI say your loan is for 1 crore, HDFC say your loan is for 2 crore, ICICI say your loan is for 50 lakhs. Okay, so now the question is who can file the application under this particular section? So SBI by itself can file, SBI plus either of them, SBI plus HDFC or HDFC plus ICICI or HDFC and ICICI, either of the combination can also file, and also individually any of them can file. Now you will come and ask me, sir, right now only you told us that the minimum limit threshold is for 1 crore. The only in case of financial creditor, if default is there for any of the financial creditor, if there is a default of more than 1 crore in any of the financial creditor, then the financial creditor whose default is not there, he can also file an application to AA for CIRP. Also, HDFC can appoint some XYZ person to file an application on behalf. That is also allowed. It has clearly been told that himself, itself, jointly, or any other person on behalf of the financial creditor can file that application. So either of the combinations can file the application. One debt has to be more than 1 crore rupees for initiating the application. Your application, you might not have a debt more than 1 crore, but you are a financial creditor. Then in that particular case, you can file an application against a corporate debtor for CIRP if any of the other financial creditor has a default of 1 crore or more, provided that for a financial creditor referred under clause A and B of subsection 6A of section 21, an application for initiation of corporate insolvency resolution process against a corporate debtor shall be filed jointly not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of the total number of creditors in the same class, whichever is less. So section A and B of 6A talks about people like bond holders or debenture holders. They are generally too many in that particular class. Okay, means like it can be 100 people, 200 people, 500 people also. So just to avoid that so many people are filing different application, what the code says that it can either, it has to file with a less than number of 100 people or 10%. Okay, so if say for example your total number of debenture holder are 100,
then you have to check number A is 100, number B is 10% of 500, that is 50. तो इन दोनों में से कमती कौन सा है, इन दोनों में से लेस कौन सा है, लेस ऑफ 2, that is 50 people can file an application for CIRP. The second provided जो दिया हुआ है, provided that a financial creditor who are allottees under a real estate project. So this was a new insertion which was brought in the act, real estate project. Pehle it was not mentioned here. So now the real estate allottees are also covered here. So real estate allottee कौन हो गया? If you want to buy a property in some particular project and you have already paid the money for that, in that particular scenario you are a real estate allottee. An application for initiating corporate insolvency resolution process against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project, or not less than 10% of total number of such allottees under the same real estate project. So here also mathematics is exactly same, minimum of 100 or 10% of the total. Okay, you have to, either of that has to be taken care. Only thing what you have to note here, it has to be under the same real estate project. Okay, it has to be under the same real estate project. The criteria of the number of people will be exactly same as what we have studied earlier in this first clause. Provided also that where the application for initiating corporate insolvency resolution process against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred to in for the first or the second provisos and has not been admitted by adjudicating authority before the commencement of Insolvency and Bankruptcy Amendment Act 2020, such application shall be modified to comply with the requirement of the first and second proviso, as the case may be, within 30 days of the commencement of the said act, failing which the application shall be deemed to be withdrawn before the admission. So इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे दो प्रोविजो पढ़े कि अगर आप डिबेंचर होल्डर हो या बॉन्ड होल्डर हो और या फिर तो आप एक रियल एस्टेट अलॉटी हो, तो आपकी एप्लीकेशन तभी फाइल होगी इधर मिनिमम ऑफ 100 or 10% of such kind of an allotee or such number of people in that same particular class files an application. ये अमेंडमेंट आई थी आपकी जब कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, उसके पहले अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है तो अब कोड क्या बोलता है, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एप्लीकेशन, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन मीट्स दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. तो वो प्रोविजो 1 और प्रोविजो 2 में जो क्राइटेरिया दिया गया है वो उसको मीट करती है, ये आपको चेक करना है. और उसके लिए आपको कोड ने 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है जब आपको ये करेक्ट करना है. अगर आप इसको करेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन मान ली जाएगी. तो से फॉर एग्जांपल अगर हमारा यही वाला केस था, हमारा यही एग्जांपल था, इसमें आपकी एप्लीकेशन मिनिमम 50 जन के द्वारा फाइल की जानी चाहिए थी, बट आपने ये पर्टिकुलर एक्ट आई उसके पहले आपने फाइल की थी और आपने 40 लोगों ने मिलकर फाइल की थी. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाएगी अगर आप विद इन 30 डेज और 10 लोगों का साथ मिलकर ये फाइलिंग नहीं करते हो. तो यू हैव टू रीच टू द मिनिमम लेवल मेंशन इन द एक्ट. आप मैक्सिमम कितना भी लेवल तक जा सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है, बट मिनिमम यू हैव टू हैव द either of the two, that is 100 people or 10% of such total allottees or bond holders or debenture holders. Explanation पे आते हैं. For the purpose of this subsection, a default includes a default in respect of the financial debt owed not only to the applicant financial creditor but to any other financial creditor of the corporate debtor. So we already did this particular clause. हमने यहाँ पे समझ लिया था कि अगर आईसीआईसीआई जिसका डेट 50 लाख था वो भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन अगर एचडीएफसी या एसबीआई का डेट वाज मोर देन 1 करोड़. सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं 7 का. द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन सच फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड.
तो यहाँ पे हम रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि कौन से फॉर्म होने चाहिए, कितनी फीस होनी चाहिए. ओके, ये ऑल दोस थिंग्स इज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब बाय द कोड. तो ये हम लोग जब रेगुलेशंस में जाएंगे तब हम वहां पे कवर करेंगे. क्लॉज 3 में आते हैं. द फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल अलोंग विथ द एप्लीकेशन फर्निश. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी एप्लीकेशन, अगर आप कहीं पे भी एप्लीकेशन करते हो तो जो प्रोसीड्यूर दिया गया था, यू हैव टू कंप्लाई विद इन. अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो या फिर तो आप कुछ डेटा भूल जाते हो उसमें देना, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू प्रोड्यूस. तो record of default with information utility or such other record or evidence of default as may be specified. So as you know, every financial creditor has to put its own record in the information utility, and if there is a default, then the best source for them to prove their default is direct from information utility. आप जब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई डेटा अपलोड करते हो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन द कॉर्पोरेट डेटर इज गिवन a time period in that it has to acknowledge whether it is paid that debt or not paid that debt. So if they have not acknowledged or not paid that debt, that will stay open in information utility. So you can directly pick from the information utility about the default that has happened. In case your data is not there in information utility, then you will have to prove the default with the relevant evidences. So in case of such kind of a scenario, what would be the relevant evidences? Your ledger statement, the bank statements, ये सारे चीज जो हो जाएंगे वो relevant evidences के अंदर cover हो जाते हैं. The name of the resolution professional to act as an interim resolution professional shall be mentioned. This is a mandatory requirement of section 7. आपको जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका नाम आपको देना पड़ेगा. यू हैव टू सजेस्ट अ नेम ऑफ इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द एप्लीकेशन दैट यू आर फाइलिंग. एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. अगर बोर्ड को लगता है कि आपको और कोई इंफॉर्मेशन देनी चाहिए तो बोर्ड जब स्पेसिफाई करेगा, देन यू विल हैव टू ऐड सच इंफॉर्मेशन. वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज, अभी आपने देखा कि बोर्ड ने 2 नए क्राइटेरिया डाले थे ऊपर में, ये वाले की जहां पे रियल एस्टेट अलॉटी और डिबेंचर्स के. And it also specified that you will have to change your old application also. So वैसा कुछ specifications board time to time डालती रहती है. तो अगर वैसा कुछ डालती है तो you have to meet such conditions also. Clause 4 पढ़ते हैं. Adjudicating authority मतलब NCLT shall within 14 days of the receipt of the application under clause 2 ascertain the existence of default from the record of an information utility or on the basis of the evidences furnished by the financial creditor under subsection 3. आपने जब एप्लीकेशन फाइल की तो उसके विदिन 14 डेज आपकी एप्लीकेशन को AA will review the application and it will ascertain the default. 14 डेज के अंदर वो ascertain the default. Provided that if adjudicating authority has not ascertained the default, the existence of default and passed an order under subsection 5 within such time, it shall record the reason for writing the same. In any case, अगर adjudicating authority कोई भी order pass करते हैं जहां पे उन्होंने reason ascertain नहीं की, मतलब उन्होंने clause 4 को comply नहीं किया, then he will mention the reason why it has not complied with clause 4 and why it has filed an application under clause, मतलब why it has approved or rejected an application under section 5. तो अब आते हैं कि ये वाला जो clause 5 है, subsection 5, उसको पढ़ते हैं. Where adjudicating authority is satisfied that a default has occurred and application under 2 is complete. Please ये नोट कीजिए, is complete. आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कब होगी? जब आपने ये तीनों क्लॉजेस को फुलफिल किया है. अगर आपने ये तीनों क्लॉजेस को फुलफिल किया है तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी. Is complete and there is no disciplinary action pending against the proposed resolution applicant, proposed resolution professional, it may admit the application. मतलब there are basically 2 criteria. Number 1 criteria, your application should be complete. The second criteria is आपने जिस IRP का नाम दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में there should be no disciplinary action which is there. अगर उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रही है
तो AA आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो भी AA आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। 5 का बी पढ़ते हैं, default has not occurred or application under 2 is incomplete or disciplinary proceeding is pending against the proposed resolution professional, it may order rejection of such an application. So we covered this part. Provided that adjudicating authority shall, before rejecting the application under clause B of subsection 5, give a notice to the applicant to rectify the defect in his application within 7 days. So that is a clause of natural justice which exists in the Indian constitution everywhere. Ki if there is a reason why which you are going to reject a particular application, then you will call for the asking them to put the reasons why there is a mistake in the application, and you will give them the time to rectify that particular application. आप एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल के ऊपर उसको मौका देंगे अपनी एप्लीकेशन को सुधारने का, उसकी एप्लीकेशन को करेक्ट करने का, एंड दैट पीरियड इज 7 days. The corporate insolvency resolution process shall commence on the date of admission of the application under clause 5. जिस दिन ये एप्लीकेशन एडमिट हो गई उस दिन आपका CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो से फॉर एग्जांपल आपने 31 मार्च 2021 को फाइल किया था एन एप्लीकेशन, ओके, एंड आपका एप्लीकेशन एडमिट होता है 12 अप्रैल 2021. सो आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी 12 अप्रैल 2021. Adjudicating authority shall communicate. So once then application has been admitted, क्या क्या कम्युनिकेट करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को कि एंड कॉर्पोरेट डेटर को कि आपके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर ऑर्डर पास हुआ है, CIRP प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू. इट शैल फाइल. अगर वहां पे ये एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये करेगा. अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो वो खाली फाइनेंशियल क्रेडिटर को एक चिट्ठी भेज देगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और उसको 7 days का मौका देगा उसको रेक्टिफाई करने का. अब आते हैं तो यहां पे अगर आप क्रिटिकली सोचे तो बिफोर गोइंग इनटू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, सो यहां पे हम लोग को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, कि वी हैव टू देयर आर डेट्स. अगर हम लोग को जो रिमेंबर करनी है तो डेट्स यहाँ पे 14 days है. एक है विच इज एप्लीकेबल फॉर AA टू गिव यू द फाइनल, मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट. आपको फिर 7 days का टाइम पीरियड दिया जाएगा, ओके, टू करेक्ट योर एप्लीकेशन. अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए. आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कब होगी? जब आपने एविडेंस दिया हुआ है, आपने IRP का नाम दिया हुआ है, प्लस आपने कोई और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय IBBI. अगर वैसा कोई है आपके पास डॉक्यूमेंट जो IBBI ने अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपने उसको अडर किया है तो आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट मानी जाएगी. लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कि यहाँ पे एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय individually by one financial creditor or jointly by all the financial creditors or a group of financial creditors themselves, or on behalf of them, somebody acting on behalf of them can also file an application. अब आते हैं insolvency resolution for operational creditor. So we understood who are operational creditor. Operational creditors होता है जो हमें goods and services supply करते हैं, वो हमारे operational creditor होते हैं. Operational creditor includes employees as well as government dues that we understood in the definition of operational creditors. Now let's see what is the procedure for filing of the application for operational creditors. Operational creditor का जो process है वो 2 section में divided है. Section 8 and Section 9 govern करता है. अब operational creditor में आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्या जरूरी है. ऑपरेशनल क्रेडिटर आप कभी भी देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जनरली दे आर लॉट मेनी नंबर्स इन कंपैरिजन टू अ फाइनेंशियल क्रेडिटर. एक कंपनी में हो सकता है 1 या 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर बहुत ज्यादा हो सकते हैं. सो जस्ट टू अवॉइड टू मेनी ऑफ द एप्लीकेशन, व्हाट द कोड हैज स्पेसिफाइड कि आपको
कभी भी एज ए ऑपरेशन क्रेडिटर एप्लीकेशन डालनी है तो यू हैव टू डू वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन. तो व्हाट इज दैट स्टेप? दैट स्टेप इज टोल्ड टू यू इन सेक्शन 8 ऑफ द कोड. सो आइए पढ़ते हैं वो स्टेप क्या है. एन ऑपरेशनल क्रेडिटर मे ऑन अकरेंस ऑफ डिफॉल्ट, तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट इज मैंडेटरी. ओके, विदाउट डिफॉल्ट यू कांट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 और सेक्शन 9. कहीं पे भी डिफॉल्ट के बिना आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. ऑन ऑकरेंस ऑफ डिफॉल्ट डिलीवर अ डिमांड नोटिस ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेटर कॉपी along with a copy of invoice demanding payment of the amount involved in default to the corporate debtor in such form and manner as may be prescribed. So यहाँ पे क्या आपको करना है? आपको एक डिमांड नोटिस भेजनी है along with the invoices जिसका उसका अनपेड है. ओके, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप एक लेटर भेजेंगे आपके डेटर को. आपके डेटर को आप ये चिट्ठी भेज के बोलेंगे कि सर आपने मेरे को पैसा नहीं दिया, आप एक डिमांड नोटिस भेज रहे हो. यू आर डिमांडिंग द मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर एंड दैट नोटिस हैज टू बी सर्व्ड. और वो सर्व करने का क्या है? आपको 10 दिन देने पड़ेंगे उसको. वो सर्व करने के बाद you have to give them a period of 10 days after servicing this kind of a notice to him. Within that 10 days, the corporate debtor can do two things. Either it can prove the existence of default or it can make the payment. What do you mean by proving of the existence of default? Say for example, एक A है और B है. B is the corporate debtor. So A sold, say for example, 100 kgs of potatoes to Mr. B. ओके, ए ने मिस्टर बी को 100 kgs पोटैटो सर्व किया. बी वाज सपोज टू पे हिम द मनी, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी बी ने उसको एक लेटर लिख के भेजा कि सर आपके पोटैटोज थे जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन आई एम नॉट पेइंग यू द मनी. ओके, इट हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम अ डिस्प्यूट. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा? So when Mr. A is demanding money from B now, so under this particular section, Mr. B can just say that I have already given you a letter which is showing that there is a dispute in the product what you have delivered to me. That's why I am not going to pay you this. Okay, but ये particular dispute has to be raised to the operational creditor before he files this particular application. After filing of the application अगर वो ये dispute raise करता है तो वो माना नहीं जाएगा. जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल हुई है उसके पहले अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट था और उसको दिखाया गया था ऑपरेशन क्रेडिटर को तो तभी वो माना जाएगा. आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऐसा कोई डिस्प्यूट अगर है तो वो नहीं माना जाएगा. बेसिकली द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कि IBC is not an act or a code whereby you can just use it for recovery of your money. This is a resolution oriented act and यहाँ पे आपको खाली तकादा करने के लिए या रिकवरी करने के लिए ये एक्ट नहीं बनी है. तो यहाँ पे बेसिकली इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो डिस्प्यूट होता है, आपका जो डिफॉल्ट होता है, दैट हैज टू बी अनडिस्प्यूटेड डिफॉल्ट. उसके अगेंस्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि वेदर दिस मनी हैज टू बी पेड और नॉट, एंड दैट हैज टू बी चेक्ड ऑन द डेट ऑन विच यू हैव सेंड द नोटिस. उसके बाद अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर कोई डिफॉल्ट या डिस्प्यूट या कुछ भी खड़ा करता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. You have to check that whether ऐसा कोई dispute existed on the day on which you are sending the application. अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आपके एप्लीकेशन भेजने के दिन में एग्जिस्ट कर रहा था तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं स्टैंड कर रहा था तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. कॉर्पोरेट डेटर क्या क्या कर सकता है वो 10 दिन के अंदर? अगर वैसा कोई एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट था तो वो डिस्प्ले कर सकता है, या फिर तो वो पैसा जो आउटस्टैंडिंग था वो उसकी पेमेंट कर सकता है. ईदर ऑफ द टू ही कैन डू. एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डिमांड नोटिस मीन्स अ नोटिस सर्व्ड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द कॉर्पोरेट डेटर डिमांडिंग पेमेंट ऑफ द ऑपरेशनल डेट इन रिस्पेक्ट of the default occurred. So यहाँ पे you have to make sure that your demand notice आप जो draft कर रहे हो that is as per the code
कोड में रेगुलेशन में स्पेसिफाइड है फॉर्मेट्स किस तरीके से आपको डिमांड नोटिस फाइल करनी है, एंड इट हैज टू से दैट यू आर डिमांडिंग द पेमेंट. आप कुछ भी लिखकर बोल नहीं सकते कि ये डिमांड नोटिस है. सो यू हैव टू फाइल इट अकॉर्डिंग टू द points or the regulations what are there in the code. सेक्शन 9 पढ़ते हैं. एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर. ऑपरेशनल क्रेडिटर किस तरह से फाइल कर सकता है. तो इसका फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेक्शन 8 जो हमने पढ़ा कि एक डिमांड नोटिस होनी चाहिए जो 10 दिन का उसको टाइम देगी. अगर 10 दिन के अंदर अगर कॉर्पोरेट डेटर ना रिस्पॉन्ड करता है, ना पैसा देता है, ना कोई डिफॉल्ट का एग्जिस्टेंस दिखाता है, तब आप जाकर अपनी चिट्ठी को ले जाकर अपने एविडेंसेस को ले जाकर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. सो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये देखना है कि आपके 10 दिन एक्सपायर हो गए. आपने नोटिस दी, उसके 10 दिन एक्सपायर हो गए, तो आपको ना उसने कोई रिप्लाई किया, ना कोई डिफॉल्ट प्रूफ की, ना आपकी पेमेंट की उसने, तो आप अपनी वो जो डिमांड नोटिस आपने जो भेजी थी उसको लेकर अलॉन्ग विद द एविडेंसेस. तो एविडेंसेस में आपको क्या क्या फर्निश करना है. कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांडिंग द पेमेंट, इन affidavit to effect that there is no notice given to the corporate debtor relating to dispute of the unpaid amount. तो यहां पे आपको ये एक एफिडेविट देना है, आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि there is no dispute standing between you and the corporate debtor for that particular outstanding. ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे सीआईआरपी प्रोसेस में दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब आपने, हो सकता है कॉर्पोरेट डेटर फॉर एनी रीजन आपको रिप्लाई करना भूल गया, and on 11th day when the application has been accepted by AA, corporate debtor comes and shows a आउटस्टैंडिंग के लिए आपका जो डिस्प्यूट एक दिखा देता है कि उसने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया हुआ था डिस्प्यूट के बारे में. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, व्हाट द प्रोसेस बाय इटसेल्फ सेज कि you as a applicant you also have to file a declaration कि there is no dispute outstanding between you and the corporate debtor, and the only money that is outstanding is a clean money outstanding. By meaning of clean is there is no existence of dispute. The copy of certificate from the financial institute maintaining the accounts of operational creditor confirming that there is no payment of an unpaid operational debt. ओके मतलब आपको अपने जो आपका बैंक है उसका भी आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वहां पे बैंक स्टेटमेंट से बैंक से आपको एक आपका जो अकाउंट्स मेंटेन करता है वहां पे जो अकाउंट है उसको आपको प्रूफ की तरह लगाना पड़ेगा कि उसमें कोई पेमेंट आपके आई नहीं है. देयर इज नो मनी दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटर फॉर दिस पर्टिकुलर डेट विच यू आर क्लेमिंग फॉर. A copy of a record with information utility confirming that there is no payment of the unpaid operational debt by the corporate debtor if available. Okay, so ये दोनों जो है क्लॉज नंबर सी एंड क्लॉज नंबर डी, ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, ये रिकमेंडेटरी है इफ अवेलेबल. अगर आपके पास ये होते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको कवर करना है, आपको इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिमांड नोटिस होनी चाहिए जो आपने किया है, एंड आपको एक एफिडेविट फाइल करनी होगी कि देयर इज नो डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. पॉइंट नंबर ई, एनी अदर प्रूफ कंटेनिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ द अनपेड ऑपरेशनल डेट बाय द कंपनी. मतलब और कोई एविडेंस है, कोई ईमेल है, कोई लेटर्स है, तो आप उसको अलॉन्ग विथ फाइल कर सकते हैं. एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, सो यहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर में ये जब एविडेंसेस और ये वाला क्लॉज पढ़ा था, तो वी नोटिस दैट इन फाइनेंशियल क्रेडिटर देयर वाज वन पॉइंट दैट आईआरपी का नेम हैज टू बी मेंशन्ड. इन ऑपरेशनल क्रेडिटर यू डोंट हैव टू मेंशन द आईआरपी का नेम. आईआरपी का नेम मेंशनिंग इज ओनली मैंडेटरी इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर. In case of operational creditor, mentioning the name of IRP is not mandatory. And operational creditor in initiating CIRP process under this section may propose, okay, it may propose, वहां पे it shall propose लिखा हुआ, यहाँ पे it may propose a resolution professional to act as a interim resolution professional. यहाँ पे भी सेम 14 डेज का टाइम पीरियड मांगा गया है कि 14 डेज हैज टू बी गिवन टू एजुकेटिंग अथॉरिटी टू अप्रूव और रिजेक्ट द एप्लीकेशन. अगर वो रिजेक्ट करता है तो वहां पे भी वो आपको 7 डेज का पीरियड देगा टू करेक्ट योर एप्लीकेशन.
एंड मेक श्योर दैट आपकी एप्लीकेशन हर तरीके से कंप्लीट हो, तो वो आपको यहाँ पे भी 7 डेज का पीरियड देगा टू मेक श्योर दैट योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। ओके, अगर आपने किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम मेंशन किया है एंड अगर आपका उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जा सकती है। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई भी तरीके से इनकम्प्लीट है, मतलब आपने इनवॉइस नहीं अटैच किए हैं, या फिर तो आपको पेमेंट रिसीव हो गई है बट आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, या फिर तो आपका जो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट था और आपने उसमें जो एफिडेविट दिया था वो गलत था, कुछ भी कारण से इनकम्प्लीट है आपकी एप्लीकेशन, तो सीआईआरपी के अकॉर्डिंगली आपका जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, एनसीएलटी है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है और वो आपको 7 डेज का पीरियड देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सब तरीके से कंप्लीट है तो आपकी एप्लीकेशन को मान्य कर लिया जाएगा एंड जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रोवाइडेड दैट the corporate resolution shall commence from the date on admission of that application under clause 5। तो आपका जो clause 5 है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई तो उस दिन से आपका सीआईआरपी का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बाय कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ। कॉर्पोरेट डेटर हिमसेल्फ कैसे फाइल कर सकता है, मैं अपने आप कैसे फाइल कर सकता हूं। वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज कमिटेड अ डिफॉल्ट, अ कॉर्पोरेट डेटर thereof may file an application for initiating corporate insolvency resolution process with the adjudicating authority। मतलब इसने भी डिफॉल्ट क्रिएट किया होना चाहिए। मतलब आप सोच के देखिए, विदाउट डिफॉल्ट तो आप सीआईआरपी पे आ ही नहीं सकते। अगर डिफॉल्ट भी है तो आप रिकवरी प्रोसेस के कारण तो नहीं आ सकते, आप रेजोल्यूशन के लिए जरूर आ सकते हैं, आप रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के अंडर नहीं आ सकते। क्लॉज 2 पढ़ते हैं। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड इन सच फॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब इसके भी रेजोल्यूशन, इसके भी कोड के अंदर इसके भी प्रोसीड्यूर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या है, द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा, ये फर्निश करेगा रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर द सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड, जो जनरली ये 2 साल के लिए आपको देने चाहिए। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रेजोल्यूशन प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो यहां पे भी मैंडेटरी है। अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज केस में बी अप्रूविंग द एप्लीकेशन। सो आपकी अगर आप कंपनी हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, और अगर आप एलएलपी हो तो आपको पार्टनर्स को मिला के 3/4 ऑफ द मेजोरिटी के साथ आपको एप्लीकेशन फाइल करने के पहले आपके पास मेजोरिटी का अप्रूवल होना चाहिए बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। एजुकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 14 डेज, यहां पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। 14 डेज का पीरियड आपको दिया जाता है एजुकेटिंग अथॉरिटी को टू अप्रूव और रिजेक्ट द फाइलिंग व्हाट यू हैव डन। If he is rejecting the application, he will give you a notice of 7 days to correct the application। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कब हो सकती है, अगर आपका जो आईआरपी का नाम आपने दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रही है, या फिर तो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो कोई भी हिसाब से इनकम्प्लीट है, तो इन ईदर ऑफ द केसेस योर एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड। आपको 7 डेज का टाइम दिया जाएगा अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करने का। आपने एप्लीकेशन करेक्ट कर दी तो विद इन 14 डेज एजुकेटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव होते ही जिस दिन पे ये अप्रूव होती है उस दिन से आपका सीआईआरपी प्रोसेस विल कमेंस। सेक्शन 10A, दिस इज द बर्थ विच हैपेंड आफ्टर कोविड। ओके, सो कोविड की अपनी डेट थी कुछ 24 मार्च के आसपास, तो ये 25 मार्च को आया था, तो इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ये। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7, 9 and 10, no application for initiation of corporate resolution process of corporate debtor shall be filed for any default arising on 25th March 2020 for a period of 6 months or such further period not exceeding 1 year from that such date as may be notified on this behalf। So as on today this period has been extended to 25th March 2021। सो इस क्लॉज के अकॉर्डिंगली इसका मतलब क्या होता है कि 25 मार्च 2020 ऑनवर्ड्स
कोई भी नया एप्लीकेशन अंडर CIRP फाइल नहीं हो सकता, इरिस्पेक्टिव आपका डिफॉल्ट कितना भी हो, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड। सो पहले जब ये आया था, कोविड आते ही ये एप्लीकेशन डाल दी गई थी, तो वहां पे डाला था 6 महीने के लिए, बट फिर कोविड सबसाइड नहीं हुआ था, तो अब उसको एक्सटेंड करके 25 मार्च तक का किया गया है। हमारा कोड बोलता ही है मैक्सिमम 1 ईयर तक। सो होपफुली ये बैन उठ जाना चाहिए 25 मार्च को, या फिर तो नहीं उठता तो क्या नया पास होगा वो हमें 25 मार्च 2021 को ही पता चलेगा। Provided that no application shall ever be filed for initiation of corporate insolvency application of the corporate debtor for the said default occurring in the said period. This is a brahmastra. Okay, this is the very important clause. This is a very very important clause. ये clause क्या बोलता है कि अगर आपकी डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा भी हो गई है, ओके, तो भी आपके अगेंस्ट में CIRP एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती है। तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे एक रखते हैं 25 मार्च 2020। ओके, उसके पहले आपकी डिफॉल्ट थी 50 लाख की। ओके, आपकी 25 मार्च 2021 आपकी डिफॉल्ट थी 2 करोड़ की। ओके, एंड उसके बाद आपकी डिफॉल्ट हुई 25 मार्च 2021, मतलब ये बैन उठने के बाद आपकी डिफॉल्ट हुई 20 लाख की। ओके, देन इन दैट पर्टिकुलर केस कैन यू फाइल द एप्लीकेशन दो योर टोटल डिफॉल्ट इज 2.7 crores. Okay, but still you will not be able to file an application because your legitimate default is only 50 lakh plus 20 lakh 70 lakhs and आपकी मिनिमम डिफॉल्ट होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए की, तो आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। बट आपकी ये डिफॉल्ट अगर हो जाती है, से फॉर एग्जांपल 70 lakhs, ओके, तो आपकी डिफॉल्ट हो गई 50 plus 70 which is more than 1 crore, that is 1.2 crore. देन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन। आपकी ये पीरियड जो है 25 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2021 की ये जो डिफॉल्ट ऑफ 1-2 करोड़ है उसको आप भूल जाइए। उसमें अगर डिफॉल्ट हुई है तो उस कारण से आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। आप रिकवर जरूर कर सकते हैं बट आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई to any default committed under said section before 25 मार्च 2021। मतलब यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट उसके पहले का अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसके ऊपर ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। उसके ऊपर वहां पे जो क्राइटेरिया दिए गए थे 1 करोड़ रुपए के वो ही लागू होंगे, वो ही यूज किए जाएंगे। So that's all for today. Section 7 to 10 has been covered. Who all can file the application? We have covered that. What is the procedure for them to file the application? We have covered them. So please, if you have any comments or if you have any question regarding this section, you can post in the comment section. I will be happy to help you out. In the next session, we will take up from section 11. Thank you everyone. Please do like, share and subscribe to our channel.